Jai Hind, dear children. Welcome in your Maths Live class. In today's class, we will start from question number 12 and we will complete this chapter by today. So let's see what are the questions. Okay? It is based on Pythagoras theorem that we need a right angle triangle, and if we have two sides given, we can find the third side of right angle triangle. Now see the question, children. Question is question number 13. We will start now. In question number 12, what is this? Two poles, 18 meter and 13 meter high, okay, stands upright, okay, in a playground. If their feet are 12 meter apart, find the distance between their tops. Okay, so let me solve this for you. May I give a hint, beta? Okay, I am going to give the hint. Question is two poles, 18 meter and 13 meter. So let's draw the pole first. Let's draw the pole. One is 18 meter and one is, it will be on the ground, so the ground will be of same level. Two poles are there, 18 meter, one pole is this, and another pole height is 13 meter. 18 meter and 13 meter. This is 13 meter. They are asking what is the distance between these two poles. What is the distance between these two poles, children? It is a pole and standing upright. सीधे खड़ा है, standing upright. It is not tilted. So definitely it will make 90 degree with the ground. Okay, so it will be a straight pole. Okay. Now, whatever the distance is from here to here, it will be same from here. ये भी बिल्कुल same होगा बेटा. Yes. This is pole 2 and this is pole 1. Pole 2 and pole 1 पूरा है, ठीक है. और ये पूरा आपका straight होगा. इसको straight बनाना होगा. This will be straight. Should be straight. Now how to find the distance between these two poles? ऐसा तो कुछ नहीं है. How we can apply? So but we can have Pythagoras theorem. We can satisfy it in a triangle. Triangle ऐसे बनेगा, ठीक है. And it is 90 degree. ये यहाँ से यहाँ तक 90 degree है बेटा, ठीक है. So obviously ये भी 90 degree होगा. हमें इन दोनों पोल की डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लो या चाहे यहाँ से यहाँ तक लो, ये भी वही चीज हुई है ना. So this is same as this. So means we have to find this. और मैम ने आपका ये दोनों टॉप को ज्वाइन कर दिया. Why? To get a triangle shape figure. ऐसे. अब बोलोगे मैम ना हमें हाइपोटेन्यूस पता है, ना बेस पता है, ना ये पता है, कैसे होगा? So can we find the hypotenuse? We can find the hypotenuse. ये पूरा 18 है. This one is 18. This is 13. So from here to here it will be 13. So 18 minus 13. Come on, 5 meter. ये आ गया आपका 5 meter. ठीक है? This one is 5 meter. अब the distance between these two. Question. Let's see the question. The two poles, if their feet. Okay. No. The question is if their feet are 12 meter apart, find the distance between their tops. Question is this. If their feet distance is 12 meter apart, children. So their feet, this is 12 meter apart. This is 12 meter apart. ये feet है इसका, ये this one है ना. ये आपका 12 meter apart है. तो ये भी वही होगा. ये आपका 12 meter apart हो गया, ठीक है. यहाँ भी वही डिस्टेंस होगी, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस होगी, क्योंकि वो स्ट्रेट है. इट इज इन द अपराइट पोजीशन. सो ये भी 12 हो गया. और ये हमने कैसे पता किया? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टॉप्स. इन दोनों टॉप्स के जो पोल का टॉप है उसके बीच की डिस्टेंस बतानी है. सो पोल का टॉप एक ये है बेटा एंड अनदर वन इज दिस. सो डिस्टेंस तो ये हो गई. मीन्स हमको ये निकालना है इसमें. दिस वी हैव टू फाइंड. ये 5 कैसे आया? ये पूरा 18 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है. जब ये 13 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 13 होगा, ठीक है. 13 पूरा 18 है, तो ये इस पूरे में से इस 13 को माइनस कर दो, इतने पोर्शन को माइनस कर दीजिए. तो बचा हुआ पोर्शन क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर.
सो नाउ यू आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। बोलोगे मैम 90 डिग्री कैसे है? तो ये 90 डिग्री है ही, ये स्ट्रेट है, अपराइट पोजीशन पे है, ठीक है, स्ट्रेट है ये पोल, टिल्टेड पोल नहीं है। सो इट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड ऑल्सो एंड ऑलवेज। सो इन दिस वे we can solve question number 12. Now question number 13. Question number 12 is homework, children. That's why I'm just explaining. Question number 13. A man goes 35 meter due west. Let me erase this first. Question number 13. A man goes 13 meter due west and then 12 meter due north. Okay. So let the man is standing here. Let me draw a ground. Okay, let the man is standing here. The man is standing here. Okay, and first of all he is going towards west 35 meter. So west की तरफ जा रहा है 35 मीटर। तो मान लो मैन आपका यहाँ खड़ा है बेटे, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। The man is here. And now he is moving towards west. West means which side? This is east and this is west. West की तरफ जा रहे हैं वो। तो west किधर हुआ? इधर हुआ, तो वो इधर जाएंगे, इधर ऐसे, और यहाँ तक पहुँच गए मान लो, ठीक है। And it is how much? 35 मीटर। 35 मीटर वो चले गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। पहले वो यहाँ पे थे, he is standing in the beginning, he is standing here and he moved towards west. वेस्ट की तरफ गए, तो वेस्ट इधर गए, सो ही मूव टूवर्ड्स दिस साइड, ऐसे चले गए यहाँ पे, ठीक। एंड देन ही मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इनका नॉर्थ क्या है? नॉर्थ आपका इस साइड होता है, ये है नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। सो नॉर्थ यानी इस साइड जाएंगे। सो नाउ ही विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड, टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये और कितना बेटा? यहाँ तक पहुंचे, और ये हो गया आपका 12 मीटर। ये हो गया 12 मीटर। So the question is asking what is the distance of final position to the original position. Question देखिए, how far he is from the starting point. वो अपने starting point से कितने दूर है? अभी वो starting point यहाँ पर थे 35 मीटर। he moved towards west, तो west की तरफ आ गए। Then he moved towards south north. So north मतलब north की साइड गए, वो कितना? 12 मीटर। Now he is at this point. So from its original position he is how much far away? यानी हमको क्या निकालना है बेटा? ये ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल जहाँ पे उनका प्लेस था वहां से फाइनल प्लेस की डिस्टेंस निकालनी है, ये, ठीक है। एंड whenever he will go towards north, वो ऐसे नॉर्थ ऐसे नहीं जाएंगे या ऐसे नहीं जाएंगे। नॉर्थ मीन्स स्ट्रेट, ठीक है। ये तो फिर आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये फिर आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। सो ही विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, सो इट विल मेक अ 90 डिग्री, इट विल मेक अ 90 डिग्री चिल्ड्रन। ओके, सो हेंस वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इन विच क्वेश्चन? इन क्वेश्चन नंबर 13. So children, let's see this. We will find the hypotenuse square. So you will use Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base का square. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base का square. We have to find the hypotenuse side. Why it is hypotenuse side? Opposite to the 90 degree angle in a right angle triangle. So this we have to find, है ना, यही हमको निकालना है. And this is equal to p square. P square is how much? Take it as 12 का square plus 35 का square. Okay. Now hypotenuse का square is equal to 12 का square is 144 and 35 square is 1225. Check it again children. 5 5 are 25. 5 5 are 25. Okay, 2 is left. 5 3 are 15, 16, 17. 5 3 are 15, 3 are 9 and 1 10. Yes. It is 1 1 1 2 2 5.
1 2 2 5, and now add them. So this will be 9. Okay, 5 plus 4 is 9, 2 plus 4 is 6, 2 plus 1 is 3, and 1 3 6 9, and 1 3 6 9 children, it is hypotenuse square. So 1 3 6 9 is square of which number? It is a square of 37. And how you will find? You can use the prime factorization method. 1 3 6 9, 1 3 6 9. So it is 9 plus 6 7 8 9 18 and 1. No, it will not be divided by 3. So we have to move ahead. We have to find whether it will be divided by 7 or not, then 9 or not, and then we have to proceed. So in this way, find the factorization, and then, or you can learn it also. So hypotenuse ka square is equal to 1369 is square of 37. And sometimes you can use your brain also. If you are not having the answer of this, and you do not want to waste your time in that, you can see this value. Okay, the unit place value. It's 9. So 9 will come. How 9 will come? When at last it will be 7. 7 sevens are 49. ऐसे आपको समझना होगा. 7 7 अगर लास्ट में 7 है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर का लास्ट में मतलब यूनिट बेस पे 9 आएगा. 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे ना 37 इंटू 37 जब आप करेंगे तो 7 इंटू 7 आएगा सबसे पहले. 7 7 सा 49. 9 आ सकता है ऐसे, या फिर 3 भी हो सकता है. 33 इंटू 33 करते तो 3 3 जा 9 तो आ सकता था. लेकिन यहाँ पे हमने देखा है 35 का स्क्वायर ही ये है, तो बड़ी वैल्यू 33 तो होगी ही नहीं. जब 35 का स्क्वायर 1225 है तो 33 की वैल्यू तो 1369 होगी नहीं, ये इससे बड़ा है. तो यानी हमें अब पीछे नहीं जाना, हमें 33 पे नहीं जाना, हमें 37 पे जाना होगा. सो फिर हम 37 का स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, है ना, जल्दी से कि 37 का स्क्वायर कितना होता है. 37 इंटू 37 करके देख लीजिए, वो आ जाएगा ही. सो h is equal to 37. पावर इज सेम मीन्स द बेस शुड ऑल्सो बी सेम. और 37 क्या? सेंटीमीटर, नो सॉरी मीटर, इट इज इन मीटर. 37 मीटर में तो 37 मीटर. So in this way we can find the value of hypotenuse. Now children, let's see the next question. Next question is question number 15. Find the length of a diagonal of a rectangle whose sides are okay. Rectangle है और उसका side का निकालना है. Length of the diagonal निकालना है. Okay बेटा, sides are given. So again we have to find the hypotenuse. Okay, so draw the diagram. Now children, quickly draw the diagram first. Question number 15 I am asking. The length of diagonal we have to find. Whose diagonal? A rectangle. There is a rectangle whose sides are given 16 centimeter and 12 centimeter. So let's see the board work. 16 centimeter and 12 centimeter. Okay, 16 centimeter and 12 centimeters are the length of a rectangle. Length and breadth of a rectangle. We have to find the length of its diagonal. So हमारे पास क्या है? One is 16 centimeter and one is 12 centimeter. Children, एक rectangle है जो 16 centimeter और 12 centimeter का है. Now you have to find the length. You have to find the length of diagonal. ऐसे, ठीक है, ये डायगोनल होता है ना, अपोजिट साइड्स को जो जोड़ता है, ये दिस इज अ डायगोनल इन अ रेक्टेंगल. इट इज दिस विल बी कॉल्ड एज डायगोनल. नाउ चिल्ड्रन, in a rectangle all angles are equal. in a rectangle opposite sides are equal. opposite sides भी equal होते हैं and all angles are equal to 90 degree. सारे के सारे एंगल्स कितने के होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं. ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है एक तरह से, ठीक है, आप पढ़ोगे बाद में. सो इन अ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. सो अगर सारे 90 डिग्री के हैं तो कैन वी यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. सिर्फ इसमें यू नो टेक दिस ट्रायंगल एंड जस्ट सॉल्व इट. व्हाट यू विल सॉल्व, व्हाट यू विल डू,
you will solve it for the hypotenuse. Hypotenuse is this much. Okay, so now we have to find the diagonal, this one diagonal, and it is the hypotenuse, longest side. Hypotenuse हो गया. क्यों हो गया hypotenuse है? Because it is opposite to the 90 degree. Opposite to the 90 degree. ये hypotenuse हो गया बेटा. So using question number 15 है ये. Using Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. Hypotenuse we have to find. ठीक. Base परपेंडिकुलर आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, बेस 16 है तो 16 का स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 16 स्क्वायर इज 256. 16 स्क्वायर इज 256. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ठीक है. नाउ ऐड द, आप इसको ऐड करिए. तो 6 + 4 10, 5 + 4 9 एंड 1 10, 2 + 1 3 एंड 1 4, 400. और 400 क्या है बेटा? 400 इज अ स्क्वायर ऑफ 20. 400 इज अ स्क्वायर ऑफ 20. देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डायगोनल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर. ये जो डायगोनल है जिसको हमने अभी हाइपोटेन्यूज माना. क्यों माना हाइपोटेन्यूज? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है. ठीक है. ये आपका ऐसे था. इट इज अ रेक्टेंगल. उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी है. दे आर आस्किंग फॉर द डायगोनल लेंथ. डायगोनल लेंथ कितनी होगी? तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो 90 डिग्री का है तो हमने इसको कंसीडर किया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसको हमने हटा दिया ना. वी लीव दैट. आप उस साइड से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा. सो इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन इट विल श्योरली सेटिस्फाई दिस पाइथागोरस थ्योरम. सो पुट द वैल्यू. सारी वैल्यूज रखते रहिए. लास्ट में हाइपोटेन्यूज 20 आ गया. 20 सेंटीमीटर. इट मीन्स द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. इट इज क्वेश्चन नंबर 16. तो सी इन अ 16 यू हैव टू डू फॉर योर होमवर्क. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड डायगोनल इज गिवन. आपको अच्छा ठीक है कोई नहीं. एक रेक्टेंगल है. ठीक है. एक रेक्टेंगल है. ठीक है. उसकी लेंथ दे रखी है ये और उसका डायगोनल दे रखा है. नाउ यू हैव टू व्हाट? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर आपको चाहिए. तो जब आपको ये पता है, अगर आप ये निकाल लोगे ब्रेड्थ, तो यू कैन फाइंड द पेरीमीटर. तो इसको निकालने के लिए क्या? ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है. यू कैन फाइंड दिस. जब आपको ये मिल जाएगा तो 2 × L + B से पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 विच आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 बेटा. सी क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस. रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल हुज all sides and angles are whose all sides are equal. अगर एंगल भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा. सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. whose all sides are equal. ठीक है. आई डोंट थिंक इट इज राइट. treated as right ना, नहीं बना. I know this. So let me draw it and you also draw the rhombus. Draw rhombus children. I am drawing it using the ruler now. I am drawing using the ruler. You also draw it children. Now I have drawn a rhombus. Okay. And it is drawn in your book also. That find the perimeter of rhombus of the length of whose diagonals are 16 and 30 centimeter. Find the perimeter of rhombus. अब rhombus की सारी sides equal होती हैं. All the sides of rhombus are equal. अभी हमने आपको बताया एक quadrilateral जो एक parallelogram भी है और उस parallelogram means opposite sides are parallel. वो parallelogram होते हैं. सब क्लास 8 में बेटा.
but then also you should know about these things. Now all the sides of a rhombus are equal, ठीक है, और डायगोनल की लेंथ दे रखी है बच्चों. डायगोनल लेंथ इज गिवन टू अस. वन इज आई थिंक 16 and one is 30 सेंटीमीटर. सो अभी ये ठीक है, ये मैम ने डायगोनल बना दिया. नाउ सी द लेंथ. वन इज 16 and one is 30. सही है. वन इज 16 सेंटीमीटर, पूरा एक 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक 30 सेंटीमीटर का है. वन इज 16 सेंटीमीटर एंड वन इज 30 सेंटीमीटर. नाउ लिसन द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. अब इसमें हमारा 90 डिग्री कैसे बन रहा है ये देखते हैं. सो इन अ रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. क्या मैम बोली? इन अ रोम्बस, क्वेश्चन नंबर 17, इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं. डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं. बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो यानी ये आपस में एक दूसरे को आधा आधा बांट रहे हैं. तो अगर ये पूरा 16 है तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 8. यहां से हाफ हो गया, हाफ उधर और हाफ इधर. अगर ये पूरा 30 है तो ये भी, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएगा हाफ हाफ पे. तो 30 का मतलब ये 15 और ये भी 15. और आप अपने आप को ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. 90 डिग्री पर दे विल बाइसेक्ट ईच अदर. यानी 90 डिग्री यहां बनता है. नाउ फोकस ऑन दिस ट्राइंगल बेटा. इस ट्राइंगल पे फोकस करो और पहले क्वेश्चन देखो. सी द क्वेश्चन फर्स्ट. Now children, see this. What ma'am told you right now, that in a rhombus the diagonals bisect each other at 90 degree. जो भी डायगोनल होगा, एक डायगोनल आपका 30 सेंटीमीटर था, एक डायगोनल आपका 16 सेंटीमीटर है, तो वो अपने को बाइसेक्ट करेगा हाफ हाफ पर और 90 डिग्री भी बनाएगा साथ में ऐसे. तो अगर ये पूरा 16 है तो इधर 8 और इधर 8 हो गया, है ना, आधा आधा डिवाइड हो गया. ये पूरा 30 है तो ये 15 और ये भी 15 हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया. सो और ये 90 डिग्री पर. तो वही मैम ने आपका यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों. डायगोनल है, रोम्बस के डायगोनल्स एक प्रॉपर्टी होती है, ये आप याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट इन रोम्बस. डायगोनल जो है, दो ही डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करेंगे एट 90 डिग्री. परपेंडिकुलरली दे डिवाइड ईच अदर. सो यहाँ 90 डिग्री भी बनाएंगे, वो एक दूसरे को करते ही करते हैं वो ऐसा, ठीक है. सो अब हमें तो करना क्या है, वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर. इस रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सो लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है, पूरे साइड्स का एडिशन कर देंगे हम. सो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा. पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो दिस प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस. तो हमें सिर्फ एक साइड की जरूरत पड़ेगी, फिर हम उसमें 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 बार का पेरीमीटर आ जाएगा वो पूरा आंसर. सो वी नीड दिस साइड. सो यूज दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को यूज करो. देखो एक 8 है, यहाँ पे 15 है, ये राइट एंगल है, ये 8 है, हमें ये निकालना है बेटा. तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस. क्यों? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो क्या आप इसका लेंथ निकाल सकते हो? बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यस, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूस. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो, लिख देंगे आप, या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, यानी साइड हमें निकालना है. ऐसे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप कोई भी एक ले लो, मैं 15 ले लेती हूँ, और उसका स्क्वायर प्लस बेस आप 8 ले लो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर. सो 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64. 8 8 जा 64. ये हो गया आपका 5 + 4 9, 6 + 2 8 एंड 2 289. तो इज इट विजिबल? यस. सो 289 होता क्या बेटा? 289 इज द स्क्वायर ऑफ, अब याद करो मैम ने अभी क्या बताया था, 9 आ रहा है. 15 का स्क्वायर 225 है, ये उससे बड़ा है, तो 15 के बाद क्या आएगा कि उसका बेस 9 हो, तो लास्ट में
जो यूनिट प्लेस है वो क्या आना चाहिए, 15 होता तो 5 5 जो 25 होगा, 16 होगा तो 6 6 जा 36 होगा, 6 आएगा लास्ट में, 17 होगा तो 17 7 7 7 जा 49. So yes, it can be 17 का square and it is 17 square 289. So side square यहाँ पे लिखिए, side square is equal to 17 का square means side is equal to 17 सेंटीमीटर. अगर ये सेंटीमीटर में तो 17. Okay, see this, it is in centimeter. Yes. Now to find the side, now we know the now it's clear that side length is 17. So now the perimeter is equal to 4 into side, perimeter of rhombus पूरा लिख लीजिए पूरा. So 4 into 17. So now find the value. Answer is 7 4 are 28 and 4 1 are 4 and 5 6 68. Perimeter of rhombus is this much. Okay, in this way you can find the value. I think it is clear to you. If not, please rewind it and see the question again. Till then children, take care of yourself and solve the questions which I have not solved in today's class from 12 to 18. Okay, till then children, take care beta.